آئے ایک حوالہ نکالیے جلدی سے جن کے پاس بائبل ہے، زبور کی کتاب زبور نمبر 42 اس کی پہلی آیت۔ کون سا زبور؟ زبور 42 اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ کیسے؟ بولیے ذرا کیسے؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، ویسے ہی اے خدا میری روح تیری۔ ہرنی کیسے پانی کے نالوں کو ترستی ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہو کہ ہرنی کیسے پانی کو ترستی؟ ہرنی کو پتا ہے کہ پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے، اس کا ریسورس زندہ رہنے کا پانی ہے، اور اس کو پتا ہے اگر پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرنی ایک دریا پر پانی پیا کرتی تھی، وہ جب بھی پیاسی ہوتی اسی دریا پر جاتی، جیسے ہی اس کو پیاس لگتی اسی دریا پر وہ جایا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دریا سوکھ گیا، کیونکہ دریا اوپر سے آتا تھا اور پانی وہاں سے بہنا بند ہو گیا۔ اب اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کس طرح زندہ رہوں گی، کیونکہ اگر پانی مجھے نہ ملا میں تو مر جاؤں گی، اور وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ زبور نویس اپنی بھوک کو ڈسکرائب کرتا ہے ہرنی کے جیسے۔ ہرنی پانی کو بڑا ترستی ہے، ہرنی کو پتا ہے پانی کے بغیر میرا وجود خطرے میں ہے، اور جب وہ پانی سوکھ گیا، اب جب ہرنی اس دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا کارن کیا ہے کہ وہ پیاسی ہے، اور پیاسے ہونے کی وجہ سے وہ بوجھل ہو گئی ہے، پیاسے ہونے کی وجہ سے وہ تھک چکی ہے، کیونکہ پانی ریسورس ہے اس کی تازگی کا۔ میرے عزیزو، جس طرح ہرنی کی زندگی کا ریسورس پانی ہے، اگر پانی نہ ملا تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر پانی نہ ملا اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ تھک جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، زبور نویس کہہ رہا ہے جیسے پانی کے بغیر ہرنی کا وجود خطرے میں ہے، اسی طرح خداوند تیرے بغیر میرا وجود خطرے میں ہے۔ میں تھک جاؤں گا، میں ماندہ ہو جاؤں گا۔ آج وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں جو خدا سے پیار نہیں کرتے، آج وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں جو خدا کے کلام سے پیار نہیں کرتے، آج وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، آج وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں جو خدا سے دور ہیں، آج وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں جو صرف رسموں کو مانتے ہیں اور خدا کے کلام سے پیار نہیں کرتے۔ رسمی مسیح تھکے ہوئے ہیں، لیکن روحانی مسیح جو خدا کے روح کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ روح سے بھرے ہوئے ہیں، وہ خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میرا وجود رسم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابلیس ان سے نہیں ڈرتا جو رسموں کو فالو کرتے ہیں، ابلیس ان سے ڈرتا ہے جو خدا کی حضوری کو فالو کرتے ہیں۔ سنیے، جب وہ دریا کے کنارے پہنچی، اس کو پتا چلا کہ یہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن اس نے شور سنا، اس نے کہا پانی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پتا پانی کا ہلکا ہلکا شور ہوتا ہے، کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ شاباش۔ اس نے کہا پانی ہے لیکن مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، پانی موجود ہے، اور اگر پانی نہ مجھے ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے شور کو سنا، ٹک ٹک کی آواز۔ اس نے جب وہ آواز سنی، اس نے اس آواز کو فالو کیا اور وہ پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ سنیے گا، دریا میں سے پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہیں پانی ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائے گی۔ اگر اس کو پانی نہ ملا، کیونکہ ہرنی کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا بندہ یہاں پر اپنی بھوک کو خدا کے لیے کیسے بیان کر رہا ہے؟ جیسے ہرنی، جیسے
जैसे भूखी और जैसे प्यासी है वैसे ही मेरी रूह खुदावन तेरी प्यासी है। कितने लोग हैं आज जो चर्च गए नहीं, और याद रखिए जो प्यासा नहीं वो मरा हुआ है। बड़े लोग हैं, गौर से सुनिए, बड़े लोग हैं जिनके अंदर खुदा की प्यास नहीं है और भूख नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ 12वें महीने की 25 तारीख को चर्च जाते हैं और वो ईस्टर पर जुलूस निकालते हैं और वो सुबह सुबह हफ्ते की इबादत करते हैं। उनके अंदर प्यास नहीं है। अगर हरनी दरिया के किनारे मर गई तो इसका मतलब उसको पानी की जरूरत ना रहेगी। बड़े लोग हैं जो मरे हुए हैं, इनको खुदा की जरूरत नहीं है और वो खुदा से प्यार नहीं करते, उनको खुदा की कोई भी जरूरत नहीं है। हरनी को पता है मुझे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। हरनी को इस बात का आइडिया है अगर पानी ना मिला तो मेरा वजूद खतरे में है। हरनी ये जानती है, मेरे अजीजों ईमानदार ये जानते हैं अगर खुदा की कुर्बत ना मिली तो मेरा वजूद खतरे में है, मेरी मशहूरी खतरे में है, मेरी चीजें खतरे में है, मैं मर जाऊंगा। हरनी को इस बात का आइडिया है और हरनी पानी के लिए तरसती है। उसने आवाज सुनी है और उसको पता है कहीं ना कहीं पानी है। हम ऐसे बड़े लोग हैं जो सिर्फ खुदा के भूखे नहीं है, सिर्फ मौजों के भूखे हैं। वो क्या कहे, उनको खुदा से शिफा चाहिए, उनको खुदा से बच्चे चाहिए, उनको खुदा से माली मौजे चाहिए, लेकिन उनको खुदा नहीं चाहिए। उनको सिर्फ मौजे चाहिए, खुदा से कोई प्यार नहीं। आज रात जो खुदा से प्यार करते हैं उनको चीजों की परवाह नहीं रहती, चीजें उनकी परवाह करती हैं। जो खुदा के भूखे हो जाते हैं, जो खुदा के प्यासे हो जाते हैं, खुदावन मुझे तेरे मौजे नहीं चाहिए, मुझे खुदावन तू चाहिए। हरनी ने जब आवाज सुनी, मेरी तरफ देखिए साहब, उसने कहा कहीं ना कहीं पानी, देयर इज अ वाटर हिडन। हम से कितने लोग हैं जिनको बड़ी दफा खुदा की हजूरी आसानी से नहीं मिलती और वो तलाश करना नहीं छोड़ते। हरनी को पानी वहां से नहीं मिल रहा जहां से मिलता है, लेकिन हरनी को पता है कि पानी मौजूद है कहीं ना कहीं। हम से कितने लोग हैं जो ये कहते खुदावंद, मूसा ने कहा खुदावंद मुझे तेरी बरकत नहीं चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, मूसा ने खुदावंद से कहा मुझे तेरी बरकत नहीं चाहिए, खुदावन मुझे तेरी हजूरी चाहिए। मैं तेरी हजूरी का भूखा हूं, मुझे बरकतें नहीं चाहिए, मुझे मुल्के कनान नहीं चाहिए, मुझे दूध और शहद की नहरें नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और जब तू होगा सारी चीजें जबरदस्त होंगी। मैं खुदा से मोहब्बत इसलिए नहीं करता, मैं चर्च इसलिए नहीं आता मुझे मौजे मिले, मैं चर्च इसलिए आता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। आई लव जीसस। कई दफा लोग सिर्फ मौजों के, शिफा के, बरकत के भूखे होते हैं, उनको खुदा से कोई प्यार नहीं होता। वो सिर्फ ये कि पास्टर साहब दुआ करो, पादी साहब दुआ करो बच्चा लग जाए, पादी साहब दुआ करो बच्चे मिल जाए, पादी साहब दुआ करो ऐ मिल जाए, पादी साहब दुआ करो ऐ मिल जाए। लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं उनको बरकतें नहीं, उनको हुजूरी चाहिए। मिल के बोलिए, उनको क्या चाहिए? और जब हुजूरी आती है चीजें खुद आती हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। सुलेमान से उसने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, What you want tell me, बता मैं तुझे क्या दूं। मैं सारे बोलिए, साउल से सुलेमान से उसने कहा, बोलिए सुलेमान से खुदा ने कहा क्या मैं बता तुझे क्या दूं, बता मैं तुझे, सारे बोलिए बता मैं तुझे क्या दूं। उसने ये नहीं कहा
मुझे खुदावंद सोना दे दे। उसने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे अमीर कर दे। उसने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे बुलंदी दे दे। उसने कहा खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे तू अपने बेटे यीशु मसीह की हिकमत से भर दे। मुझे तेरी हिकमत चाहिए। और उसने कहा खुदावंद मुझे तू चाहिए। दूसरे लफ्जों में उसने क्या कहा? खुदावंद उसने कहा खुदावंद मुझे तू चाहिए। खुदा ने आगे क्या कहा? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। खुदावंद ने कहा, लिखा जो उसने नहीं मांगा, जो उसने, सारे बोलिए, जो उसने, खुदा ने उसको वो भी दे दिया। लिखा जो उसने नहीं मांगा खुदा ने उसको वो भी दे दिया। उसने कहा खुदावंद मुझे तू चाहिए, खुदावंद मुझे तू चाहिए। जो उसने नहीं मांगा उसको वो भी मिल गया। क्या 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 उसने क्या मांगा? उसने कहा खुदावंद मुझे तू चाहिए। कितनी दफा हमारी प्रेयर लिस्ट क्या होती है? खुदावंदा मैट्रिक दे इम्तिहान च मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, खुदावंदा मैनू घर मिल जाए, खुदावंदा मैनू ऐ मिल जाए, खुदावंदा तरहा वध जाए, खुदावंदा पैसा वध जाए, खुदावंदा स्टोरी दे दे, खुदावंदा गड्डी दे दे, खुदावंदा कार दे दे, खुदावंदा बच्चे दे दे। लेकिन 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 सुलेमान ने चीजें नहीं मांगी है। उसने कहा मुझे बादशाह चाहिए, और जब बादशाह मेरा होगा बादशाह की सारी चीजें मेरी होंगी। आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर आपको खुदावंद मिल गया सारी चीजें खुदा आपको दे देगा। पहले उसकी बादशाही को ढूंढो और दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगे। इनाम किनको मिलता है? जो दौड़ते हैं। पहले दौड़ो मेरे लिए। खुदा के लिए कौन दौड़ रहा है? हम क्या हम सर जी ऐ हो जाए, ऐ हो जाए, ऐ हो जाए। देखा उसने वो चीजें जो नहीं मांगी उसको खुदा ने वो दे दी। वो कैसे हरनी की तरह प्यासा था। हरनी ने, इधर देखिए, हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। हरनी ने आवाज सुनी, उसने कहा ऊपर पानी है। इधर देखो मेरी तरफ। बड़ी दफा खुदा आम इबादत में नहीं मिलता, बड़ी दफा खुदा आम चर्चिस में नहीं मिलता, बड़ी दफा खुदा आम लोगों के साथ नहीं होता। बड़ी दफा सुनिएगा, बड़ी दफा में पहाड़ों पर खुदा की आवाज सुनने के लिए बेहतरीन लोगों की जरूरत होती है, जो रूह में गहरे हो, जो खुदा में गहरे हो, जो पाकरू से भरे हो, जो कलाम से भरे हो, जो मोर्शों से भरे हो, जो शिफा से भरे हो, जो ताजगी से भरे हो। हिरनी को नीचे, उसने कहा मैं ऊपर जाऊं। हमारी जिंदगी में वैसे लोग होने चाहिए जो रूह से भरे हो और जो खुदा के पाकरू के हजूर और खुदा के पाकरू से भरे हो। अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों पर आप जाते हैं, वहां पर मुर्दा हालात होते हैं। रूहानी तौर पर चर्च मुर्दा होता है, इबादत मुर्दा होती है, कलाम के अंदर ताकत नहीं होती, परस्तश में ताकत नहीं होती। और जो खुदा से बरकत पाना चाहता है वो कहता है ये खुशक जगह है, मुझे ऊपर जाना है। हिरनी जैसे कह रही मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे ऊपर जाना है। मैं आज आपको रस्मी चर्चों से छोड़कर रूहानी चर्चों के अंदर जाएं, ताकि खुदा की हजूरी जहां पर बहती है, जहां पर कलाम बहता है, आप रूह में ताजा हो जाएंगे। आमीन। हमें फिक्र क्या रहती है? जनाजा कौन करेगा, निकाह कौन पढ़ेगा? ले, एक आधी फिक्र है। निकाह कोई भी पढ़ देगा, तू मर गया। जनाजा कोई भी पढ़ देगा। अपनी रूह की फिक्र करो। जनाजे पढ़े जाएंगे, निकाह हो जाएंगे। मैंने तो इस चर्च में निकाह कराना, मैं इस चर्च को छोड़ दिया, मेरा निकाह नहीं होगा। भाई ऊपर जाओ, बुलंदी पर जाओ, खुशक जगहों पर ना रहो। सीक द लॉर्ड, ऊपर जाकर ढूंढो। जैसे हिरनी टिक टिक सुन रही है, उसको पता ऊपर पानी है, ऊपर मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। और सुनिए सुनिए, वो हिरनी ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है उसको पानी
क्या एक उसको पानी का एक क्या कहते हैं उसको भला, हाँ, चश्मा मिलता है पहाड़ों से, और वहां पर जाकर वो पीती है, और उसको पीने के बाद उसके अंदर कुव्वत आ जाती है। दाऊद खुदा का बंदा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कह रहा है जैसे हिरनी पानी को पीकर कुव्वत पाती है, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी पाकर कुव्वत पाता हूँ और मैं दुनिया से फिर लड़ सकता हूँ। आज कितने लोग दुनिया से लड़ना चाहते हैं और वो अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा की कुव्वत से भरे होंगे, आप शिकायत नहीं करेंगे, आप दुआ करेंगे। और जो दुआ से लोग नहीं भरे हुए वो शिकायतें करते हैं, लेकिन जो दुआ से भरे हुए हैं खुदा की हुजूरी से वो दुआ करते हैं और वो कहते हैं मैं इन हालातों को यीशु के नाम में बदलता हूं, चेंज करता हूं, तब्दील करता हूं। वो हालातों को चेंज करते, जहां जब मुझे नीचे पानी ना मिले मैं ऊपर पानी ढूंढूंगा। खुदावंद जब मुझे तेरी हुजूरी ना मिले मैं दुआ रोजे में ठहरूंगा, मैं पहाड़ों पर जाऊं। इधर देखिए, एक आदमी था, उसकी फसलें थी, खेत थे, खेतों में बड़ा फल हुआ करता था, फसलें अनाज हुआ करता, उसके कोठरे बड़े रहते, उसके जो उसने बनाए हुए थे पड़ोले जिन्हों कहते पंजाबी ची, ऊपर ही रहते सी। सुनिए, उसके घर में अनाज इतना ज्यादा था, लेकिन एक टाइम आया, उसके घर में एक सीजन आया, उसके खेतों में बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, बोलिए जरा, हाँ बोलिए ना, बोलिए जरा, सुनना चाहता मैं आपकी आवाज। क्या ना होगी, वो भी बड़ा प्राउड फील करता था कि मेरे पास बड़े अनाज है, बड़ा प्राउड फील करता था कि मेरे पास बहुत सा अनाज है। लेकिन एक सीजन ऐसा आया, उसको महसूस हुआ कि मेरे पास जमीन है लेकिन मेरे पास पानी नहीं है, और पानी ना होने की वजह से उसके पास बंदे भी थे लेकिन खुश्क साली थी, काल था। मिलके बोलिए क्या था, सारे बोलिए क्या था। और वो बंदा बड़ा पैसा कमाया करता था अनाज से, लेकिन एक दफा खुश्क आली आ गई, काल आ गई। उस बंदे ने सोचा कि ये सब कुछ पानी की वजह से, किसकी वजह से था, उसने क्या, और जब वो पहाड़ों पर गया तो वहां पर भी पानी नहीं। उसने कहा मेरे पास जमीन है, मेरे पास इंसानी ताकत है, लेकिन मेरे पास पानी के चश्मे नहीं। आपको मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर बड़ी सरखेज जमीन, पूरे अफ्रीका के अंदर बड़ी सरखेज जमीन, और होता क्या है, वहां पर पानी नहीं होता, और पानी ना होने की वजह, उनके पास सरखेज जमीन है लेकिन उनके पास पानी नहीं है, और पानी ना होने की वजह से क्या रहती है, वो बोलिए ना जरा, बंजर है, खुशहाली है। वो आदमी ऊपर गया, जब वो ऊपर गया तो उसने जाकर ऊपर देखा, उसने कहा कि चश्मे होंगे, वहां पर भी पानी। उसने कहा खुदावंद, इधर देखो, मैं, उसने कहा खुदावंद देख, सब कुछ है, तेरी बारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरा पानी नहीं है, मेरा सब कुछ बेफजूल है तेरे बगैर। बड़ा फख्र करते हैं, लेकिन अगर खुदाई ना हो तो सारा फख्र जीरो हो। और मैं आज आपको बताने आया हूं इस मज़बा में से 90% पाकिस्तान में मसीह मार क्यों खा रहे हैं, पता, खुदा के भूखे नहीं। मसीहियों को पाकिस्तान में इबादत करने की आदत नहीं है, और ये मैं पुरपट पर खड़ा होकर कह रहा हूं, पाकिस्तान में लोगों को इबादत करने की इतनी आदत नहीं है। इनको क्या आदत है पता, क्या आदत है भला, इनको सोने की आदत है, इनको आवारा फिरने की आदत है, इनको गलियों में खड़े होने की आदत है,
इनको सिर्फ रिश्तेदारों को खुश करने की आदत है। हर रोज उनके घरों में, वो उनके घरों में, बस इसी तरह इनको शादी ब्याह, बस दुनियादारी के कामों में। लेकिन याद रखिए, ये चीजें आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर आपको कोई चीज खुश कर सकती है, आपको फलदार कर सकती है, तो वो खुदावंद है, वो खुदावंद है, उसकी ये जूरी है। इस आदमी के पास सब कुछ है। ये लिख लें, संडे को आप गलियों में जाएं, लोग चर्चिज में होंगे कि गलियों में छोटे छोटे बच्चे नंगे गलियां च खेड़ते होंगे, क्योंकि माँ बाप उनको चर्च नहीं लाते, माँ बाप उनको खुदा के घर में नहीं लाते। और गलियों में आप संडे को जाएं, सारी ये सारा मसीह घरों में सोए होंगे, और कई फिल्में देखते होंगे, और कई ड्रामे देखते होंगे, और कोई गलियों पर आवारा। इबादत की आदत नहीं है इतनी ज्यादा हमारे लोगों को। जो इबादत के आदी हो जाते हैं, वो दुनिया में फिरना घूमना बंद कर देते हैं, और जो उसके भूखे और प्यासे हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पानी नहीं। इधर देखो, मेरे पीछे बोलो, जैसे हिरनी, बोलिए, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, झूठ नहीं बोलना, वैसे ही आपकी रूह तरसती है खुदा को। ये किसी ने क्या दे चर्च आ गए, नहीं ते सराना सुट्टिया दे सुते रहे, धक्का स्टार्ट ना बनो, कह के चर्च ले आना पवे। ओए आजा चर्च, अच्छा तू चल, मैं आ रहा है, ओए आजा, चल तू चल, मैं आना है। ऐसे खुदा बरकत नहीं देता। आज कितने लोग फलदार क्यों नहीं है, बता आपको? हाँ, बोलिए, किस वजह से? आप पैसा रख कर भी बारिश नहीं ला सकते। उसके पास अनाज था, लेकिन बारिश नहीं थी। उसके पास जमीन थी, लेकिन बारिश, उसके पास मजदूर थे, लेकिन बारिश नहीं थी, पानी नहीं। और पानी क्या करता है? प्यास को, जमीन की प्यास को भी। जैसे हिरनी की प्यास कहां से बुझेगी और जमीन की प्यास कहां से बुझेगी, वैसे ही खुदावंद मेरी प्यास तुझसे बुझेगी। अब ऐसे कितने लोगों को तजर्बा है, कभी आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा खाना भी खा रहे हो, लेकिन आप अंदर से टूटे हो, पैसे भी जेब में हो। आपके पास पैसे भी हैं आपकी जेब में, आपके कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, आपके मतलब का खाना भी है, लेकिन अंदर खुश नहीं है तजर्बा इसका मतलब जैसे हिरनी को ऊपर जाकर पानी मिलेगा और वो खुश होगी, वैसे ऐसे लोगों को खुदा की जब तक हुजूरी ना मिले वो खुश नहीं होंगे। हमें दुनिया की चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, छोड़कर आ गए हैं और वो खुदा के हुजूर झुके हुए हैं। खुदावंद इन चीजों में कोई सुकून नहीं। जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं, कई सालों पहले वो लोग वो चीजें करके वापस आ गए हैं और वो कहते हैं खुदावंद उन चीजों में कोई सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ तेरे पास है। कई सालों पहले, इधर देखो, जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो कई लोग कई सालों पहले वो चीजें पाकर वापस आ गए हैं और उन्होंने सोचा ये खोखला है, इसमें सुकून नहीं है। अगर सुकून है तो खुदावंद तेरी जात में है। मैं खुश हाँ ओना तो वध के जो खुश है, मैं खुश हाँ। पैसे से दवाई खरीद लेंगे, शिफा नहीं खरीद सकते। शिफा यीशु मसीह है। पैसे से घड़ी खरीद लेंगे, टाइम नहीं खरीद सकेंगे, टाइम यीशु देता है। पैसे से बेड ले आएंगे, नींद नहीं ला सकते, नींद यीशु देता है। आमीन। खुदावंद की भूखे हो जाए। कितने लोग भूखे होंगे उसके? हाँ, ते भूखा बंदा छोर पांदा के सुकून ना रहंदा, बड़ा जोशीला हुंदा है। मैनू याद पैंदा, सुनो तुहानू मैं दस रहा, तुसीं खुश भी होगे ते हसोगे भी। असी स्कूलों आना, जिस दिन कुछ ना बनया होना तो असी पतीलियां ने ठुड्डे मारी जाने, अज तू कुछ भी नहीं बनाया, अज भुख सानू इन्नी, असी बड़ा। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ, जब हम छोटे थे
हमारी अम्मी कुछ ना कुछ, हमारे पास पैसे ना भी होते तो कुछ बना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता कुछ ना बना सकती, लेकिन असी जो आना सी कहना अज तो कुछ भी नहीं बनाया, ठुड्डे पतीलियां नु ठुड्डे, गिलास तोड़ देने, कप तोड़ देने, असी तेरा भला हो जाए। और जब तक हमें कुछ मिलता ना, हमारा दिल करता दरवाजे भी तोड़ दें, हमारा दिल करता आज छाती तोड़ दें, जब तक हमें हमारा दिल करता सारा कुछ यहाँ पर क्योंकि हमें तो रोटी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, हमें हमारी भूख ना मिटी तो ये घर टूट जाएगा। जो लोग खुदावंद के दीवाने हो जाते हैं वो कहते दुनिया की हर चीज तोड़ देते हैं, अगर खुदावंद ना मुझे मिला तो मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आमीन। इस तरह भूखे हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं, कुछ ना मिले। जहां पर खुदा की जरूरी ना हो उस जगह को छोड़ दे। जहां पर खुदा मूव नहीं करता, हमें बड़ा गुस्सा आता, आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है और हम गिलास तोड़ देते, कप तोड़ देते, बड़े गुस्से में। हमें बहुत ज्यादा, हमें भूख क्या करती थी, जिनको खुदा की भूख होती है वो इब्लीस की सरी को तोड़ देते हैं। भूखे हो जाएं, होंगे कैसे, जैसे हिरनी। आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। सुनो सारे गौर ना, सुन रहे जो किन्नू किन्नू मौजा चाहिए, डीला चाहिए, बच्चे चाहिए, चीज़ा चाहिए, हाँ बोलो किस किस को मौजा चाहिए? जिन्होंने बच्चे उन्होंने बच्चे नहीं चाहिए, मौजा तो चाहिए ना कोई के बच्चे चाहिए सानू, मौजा चाहिए। हाथ खड़ा करे ना, और शर्मा क्यों रहे जो नहीं चाहिए तो फिर चुको चुको चाहिए। किस किस को चाहिए? मैं आपको आज मौजे की चाबी दे देता हूं। खुदावंद को ढूंढना शुरू कर, दुआवां ना कराओ खाली। कई लोगों ने की कीता, दुआवां ते गुजारा कीता है, चल मिल जाएगा, दुआ कोई कर देंदा है, दुआवां ते गुजारा करते फिरदे है, खुद कुछ नहीं करना। मौजा किन्नू किन्नू चाहिए? अपना हाथ चुको होन जरा। खुदावंद को ढूंढना शुरू कर दो, पहले उसकी बादशाही को ढूंढो तो दुनिया की सारी चीजें तुहानू मैनू पूछो। मैं कोशिश कर करके कोशिश करना ही छड़ दी। मैं क्या खुदावंद तेनू खुश करना, आपे चीज़ां मिल जांदियां। मैं क्या खुदावंद तेनू खुश करिए हाँ तो चीज़ां की हो जांदियां। तो जो एवें ही पागल होए भज्जे फिरदे है, इधर भज दौड़ना कख नहीं होना। खुदा जो चीजें नहीं है उनको भी बुलाने की कुदरत रखता है। इंसान को पैदा करेगा तो इंसानों का होना जरूरी है, ऐसे ही है। इंसान को जब पैदा करेगा इंसानों का होना जरूरी है, लेकिन जब खुदा इंसान को पैदा करता है इंसान का होना जरूरी नहीं। वो मट्टी से भी इंसान बनाने की कुदरत रखता है, वो मट्टी से भी इंसान बनाने की कुदरत रखता है। इंसानों को कोशिश करनी पड़ती है, खुदा को कोशिश करना नहीं पड़ती। मैंने देखा डॉक्टरों से भी फेल हो गए। मैं एक खादम को जानता हूँ, आ गया तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, दुआ करते रहे। खुदा ने एक ही दिन 2 बेटे दिए और वो आज तंदुरुस्त हैं और वो जिंदा हैं। कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। जब खुदा काम करता है, खुदा कुछ हो तो काम नहीं करता। इंसान कुछ हो तो, सारे बोलिए, इंसान कब काम करता? कुछ हो, लेकिन खुदा कुछ भी ना हो तो काम करता है। आमीन, आमीन। आज उठाकर जोरदार तालियां यीशु के लिए। प्रेज। ढूंढेंगे उसको, ढूंढेंगे। बादशाहों के दिल किसके हाथ में है? खुदा ने दिल किसे दा सख्त कर दिता तो तुसी की कर लोगे? आप दौलतमंद से मिलकर भी गरीब रहेंगे, आप खुदा से मिलकर कभी गरीब नहीं रहेंगे। मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है। वो किस पर है? जैसे हिरनी ढूंढेंगे वैसे, हाँ कि नहीं ढूंढेंगे? खुदा से प्यार करेंगे? कितने लोग करेंगे? अपना हाथ खड़ा करेंगे?
ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھیں گے موزے دیکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، دعا کریں، منگل کی عبادت میں دعا کر کے آیا کریں آدھا گھنٹہ گھر میں کہ خداوند آج جلالی کام کر، معجزے کر، سارے دعا کیا کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کی بڑی مدد کرے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں